ملیں گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملیں گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم دل کے ہر گوشے پہ ہندوستان رکھتے ہیں۔ دینی ایمانی ملی بھائیوں بزرگوں، آج 26 جنوری کی تاریخ ہے اور آج کے دن کو تاریخی جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 26 جنوری کی تاریخ یہ ہندوستان کی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اس ملک کو ایک قانون ملا، اس ملک کو ایک دستور ملا، جس قانون اور دستور کے تحت ہمارا یہ ملک اور یہ پیارا وطن ہندوستان اسی وقت سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ لیکن اس دستور کے ملنے میں، اس قانون کے پانے کے لیے اس ملک کے ہر طبقے کے افراد نے مختلف محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، قربانیاں دی ہے۔ قوم کے، ملک کے افراد نے اس ملک کو دستور دینے کے لیے، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے خون بہائے ہیں۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ملک کے ایک بڑے طبقے کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہر طبقہ، ہر سماج اپنے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، لیکن ہندوستان میں جو تاریخیں پیش کی جاتی ہے، اسکول اور کالجز میں جو تاریخیں پڑھائی جاتی ہے، جو ہسٹری بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، اس ہسٹری میں اور اس تاریخ میں ایک بہت اہم حصے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور تقریباً تمام ہی اسکول اور کالجز میں اور تمام ہی پروگرام میں ان تاریخوں کا ذکر نہیں ہوتا، ان افراد کو یاد نہیں کیا جاتا کہ جن افراد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے، سب سے پہلے قربانیاں دی ہے، جس کا ضمیر سب سے پہلے جاگا ہے، اور جس نے ملک کے اندر آزادی کی فضا کو قائم کیا ہے، جو ملک کے چپے چپے پر چل کر اور جا جا کر علاقے علاقے گھوم کر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں کو بیدار کیا ہے، ان لوگوں کا کہیں پر ذکر نہیں ہوتا ہے۔ آج کی اس تاریخ میں 1857 سے جنگ کی آزادی کی تاریخ کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1857 سے جنگ کی آزادی کی تاریخ ہے، لیکن اس سے پہلے کی ایک صدی کو بھلا دیا گیا، اس سے پہلے کی 100 سالہ تاریخ کو فراموش کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، 1601 میں سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر انگریزوں کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے آیا، اور اس نے ایک کمپنی کی بنیاد ڈالی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، اور اس کمپنی نے 1601 سے 1605 تک اپنے اس کاروباری کام کو آگے بڑھانے کی وہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا، ان کی نیت خراب تھی، اس لیے وہ اپنے مشن میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اور 1605 کے بعد پھر انہوں نے اپنی کمپنی میں ملازم کے نام پر فوجیوں کو بھرنا شروع کر دیا، اور اس کو ہتھیار چلانے کی اور جنگ کرنے کی ٹریننگ دینی شروع کی۔
चुनांचे वो मेहनत करते रहे और अपने उस 100 साल में उन्होंने 150 साल के अंदर उनके कई नस्लें गई और उन्होंने खूब कुर्बानी और मेहनतें की। और उस मेहनत के नतीजे में जब उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबाजात पर कब्जा करने का इरादा बनाया और उन्होंने ये सोचा कि अब इस मुल्क में हमें हुकूमत करनी चाहिए, इस मुल्क में हमारा इख्तियार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसके लिए तहरीकें शुरू की और अपनी कंपनी के अफराद को तकरीबन कई हजार मुलाजिमों को ट्रेनिंग देकर बाज़ाब्ता उन्हें फौज की शक्ल इख्तियार दिया और उनको आलात और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। और उसी दरमियान में जो बंगाल का नवाब था, नवाब वर्दी अली खां, उन्होंने उनकी इस नीयत को महसूस किया और 1754 के अंदर सबसे पहले नवाब वर्दी अली खां ने उनसे जंग लड़ी है और मसलह जंग लड़ी है। आजादी की ये पहली जंग है जो तारीख में लिखी गई है, जिसको आज फरामोश किया जाता है। 1754 में नवाब वर्दी अली खां ने सबसे पहले उनसे जंग लड़ी, लेकिन उस जंग में नवाब अली खां वर्दी को शहीद कर दिया गया। उसके बाद उस सूबे का नायब वजीर आला और उस सूबे का कमान नवाब सिराजुद्दौला के हाथ में है और नवाब सिराजुद्दौला अपने दादा के मनसब पर फाइज होते हैं। और फिर उन्होंने 1757 में जाकर दोबारा अंग्रेजों से जंग लड़ी है और फिर उनकी मेहनत के नतीजे में, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में इधर नवाब सिराजुद्दौला की फौज की तादाद 50,000 है और उनकी तादाद तकरीबन 3,000 है और उन 3,000 में भी 2500 अफराद वो हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। सिर्फ 500 फौज वो थे जो अंग्रेज हैं, जिनका ताल्लुक अंग्रेजों से था। इन 3,000 की फौजियों की तादाद को लेकर नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबला होता है, लेकिन वो शायर कहा है किसी शायर ने कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से। नवाब सिराजुद्दौला से बगावत की मीर जाफर ने और मीर जाफर ऐन लड़ाई के वक्त जाकर अपने साथ जो उनके साथ में उनके हामी जो अफराद थे, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर पर भरोसा किया था, उन पर एतमाद किया था और उसी एतमाद के नतीजे में उनको अपनी फौज का कमांडर बनाया था। और जब ऐन मैदान जंग में पहुंचा तो नवाब सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफर, उसने बगावत की और वो जाकर अंग्रेजों के साथ शामिल हो गया। अंग्रेज ने उसका फायदा उठाया और नवाब सिराजुद्दौला को वहीं पर शहीद कर दिया। जब नवाब सिराजुद्दौला को शहीद कर दिया, अब अंग्रेजों का मन बढ़ गया, अब उसको हिम्मत और हौसला मिल गया, उनको जुर्अत आ गई, बेबाकी उनके अंदर आ गई और उन्हें ये लगने लगा कि जिस तरीके से हमने इसको शहीद किया और बंगाल पर हमारी हुकूमत बन गई, बंगाल पर हमने कब्जा कर लिया, इसी तरीके से हम दीगर इलाकों को भी सूबे दर सूबे को कब्जा करके इस मुल्क पर अपनी हुकूमत कायम बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। चुनांचे वो बंगाल से उसने अपनी नजर दौड़ाई टीपू सुल्तान के शहर मैसूर की तरफ और वो वहां पर गया और उसने, क्योंकि टीपू सुल्तान ने 1782 में उनके वालिद के हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान ने जो अपने वालिद का मनसब संभाला है और उसके दिल में जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत थी और अंग्रेजों की जो दुश्मनी थी, वो अपनी उस दुश्मनी का इंतकाम लेना चाहते थे। अंग्रेजों ने 1784 में वहां पर हमला किया और फिर उसके नतीजे में वहां पर जंग हुई। उस जंग के नतीजे के बाद वो सुल्तान टीपू रहमतुल्लाहि अलैह उस जंग को हार गए। फिर दोबारा जंग होती है 1792 में, फिर तीसरी बार जंग हुई 1799 में। उस जंग में फिर वही किस्सा पेश आया जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ पेश आया था कि वहां मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला से बगावत की और उनको धोखा दिया। यहां पर मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ बगावत की और उनको धोखा दिया। ऐन लड़ाई के मौके पर मीर सादिक ने
अंग्रेजों से मुसालहत कर ली और वो अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया, जिसके नतीजे में जंग के मैदान में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। 1799 में जब टीपू सुल्तान को शहीद किया गया, जो जो अंग्रेज का जो कमांडर था, अंग्रेज का जो जनरल था, उसने टीपू सुल्तान के छाती पर अपने पैर को रखकर उनके सीने पर चढ़कर कहा था कि आज से ये मुल्क हमारा है, आज से ये मुल्क हमारा है, ये इस मुल्क पर आज से हमारी हुकूमत बनेगी। चुनांचे उसके बाद फिर उसकी हिम्मत और बढ़ती है, फिर उसने दिल्ली का रुख किया है। दिल्ली में औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को खत किताबत के जरिए उसने हिंदुस्तान की हुकूमत को खत्म करने के लिए कोशिशें की। चुनांचे दिल्ली में मदारिस का एक जाल बिछा हुआ था उस वक्त में। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके जरिए इस हिंदुस्तान में कुरान का दर्स आया, जिनके जरिए इस हिंदुस्तान में हदीस पहुंची है, जिनके तमाम एशिया के जितने उलमा हैं, इनकी तमाम अहादीस की सनद को अगर हम मिलाते हैं तो तमाम की अहादीस की सनद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से तक पहुंचती है और उसके बाद वो सनद मक्कतुल मुकर्रमा जाती है, वहां से इमाम बुखारी तक अहादीस की सनद पहुंचती है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जब 1799 में टीपू सुल्तान को मैसूर में शहीद किया गया तो 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब एहसास हुआ और उन्होंने जिहाद का फतवा दिया, और उस जिहाद के फतवे के आते ही शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने गिरफ्तारी के आलम में भी कहा, हाँ ये मैंने फतवा दिया है। अंग्रेजों ने कहा कि शाह अब्दुल अजीज आप अपने इस फतवे को वापस ले लो कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेजों से जिहाद करना वाजिब है, मुल्क को आजाद कराना एक एक फर्द के जिम्मे फर्ज है। चुनांचे अंग्रेजों ने जब मौलाना पर दबाव डाला, लेकिन मौलाना हिम्मत और जुर्अत के पेकर थे, मौलाना ने कहा नहीं तुम मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, लेकिन मैं अपने फतवे से बाज नहीं आऊंगा, मैं अपना फतवा वापस नहीं लूंगा। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फतवा दिया। उस फतवे के नतीजे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दिल्ली की सरजमीन पर एक तहरीक चलाई और उस तहरीक का कायद बनाया सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। और इन दोनों अफराद ने फिर पूरे मुल्क का दौरा किया और मेरठ का और आगरे का, अलीगढ़ का और फिर बिहार का और फिर बंगाल का, पूरे मुल्क का दौरा करके इन दोनों अफराद ने एक टीम तैयार की और उलमा की जमात तैयार हुई, लोगों को जिहाद के बारे में बताया, लोगों को मुल्क को आजाद कराने के बारे में बताया कि हमारा ये मुल्क गुलाम हो चुका है। याद रखिए ये जो तारीख बयान की जा रही है, अब तक इस तारीख में किसी बिरादरान वतन का कोई हाथ नहीं है। ये 1757 से जितनी जंगें लड़ी जा रही है और जितनी कुर्बानियां दी गई है, इसमें A to Z एक एक फर्द वो सब मुसलमान है, सब कलमा पढ़ने वाले, सब ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाले हैं। किसी भी बिरादरान वतन का इसमें कोई हाथ नहीं है। 1803 के बाद जब इन्होंने मुल्क का दौरा किया और मुल्क के लोगों को बेदार किया, उसके बाद 1831 में जब सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शामली के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसके नतीजे में लोगों के अंदर एक उत्साहट पैदा हुई, लोगों में जोश पैदा हुआ। फिर 1857 में जाकर फिर कुछ बिरादरियां ने और कुछ हिंदू अफराद ने इसमें शमूलियत इख्तियार की है और फिर शामली के ही मैदान में दोबारा 1857 में जंग हुई है। उसी जंग में हाफिज शहीद जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह
और हजारों उलमा की पूरी टीम है। शामली के मैदान में हाफिज जामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं और इन तमाम की क़यादत करने वाले हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह है। शामली के मैदान में हजारों उलमा को शहीद कर दिया गया, लेकिन ये उलमा पीछे नहीं हटे। फिर जब अंग्रेज दिल्ली आया, दिल्ली में आने के बाद जब इसने मंथन किया तो इसके जहन में और इसके गुमान में ये बात आई कि ये मदारिस वाले, ये दीन को जानने वाले, ये कुरान को पढ़ने वाले, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लिहाजा सबसे पहले इनको खत्म किया जाए। इसलिए फिर उन्होंने दिल्ली के में 1000 जो मदारिस थे उन मदारसों पर बुलडोजर चलवाए और फिर कुरान करीम के नुस्खों को जलाया गया और ना जाने बहुत सारी कोशिशें की गई और मुसलमानों को खत्म करने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए और कुरान जानने वालों को खत्म करने के लिए, ताकि ये मुसलमानों के जमीन को बेदार ना कर सके, ताकि मुसलमानों के ईमान में जोश पैदा ना कर सके। इसलिए उन्होंने तहरीकें शुरू की। इधर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ वारंट जारी किया, मौलाना रशीद अहमद गंगोई को जेल में बंद किया गया, पहले मुजफ्फरनगर की जेल में बंद किया गया, फिर दिल्ली मुंतकिल किया गया और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्कतुल मुकर्रमा हिजरत फरमा गए और मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी रहमतुल्लाह अलैह भी वो छुपे रहे। लेकिन जब अंग्रेजों का ये चाल नाकाम हो गया और अंग्रेजों की ये तदबीरें नाकाम हो गई तो अंग्रेजों ने एक मंसूबा बनाया कि अब इनको खत्म करने का तरीका ये है कि ऐसे इदारे कायम किए जाए जहां पर इन मुसलमानों के बच्चे पढ़ने के लिए आए, वो जाहिर में तो वो हिंदुस्तान के होंगे, जाहिर में उनका लिबास और उनका हुलिया सब कुछ हिंदुस्तानी होगा, लेकिन हम उसके दिल को और उसके मन को अंग्रेजी मन बनाएंगे और उसके ज़हन दिमाग में अंग्रेजी फौज में भर्ती होने के लिए और इस मुल्क को इसी तर्ज पर चलाने के लिए हम उनकी जहन साजी करेंगे। जब इधर ये प्रोपेगेंडा बना तो उधर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों के साथ मिलकर हाजी आबिद हुसैन साहब, मौलाना जुल्फकार अली साहब के साथ इन 4-5 अफराद के साथ फिर उन्होंने 1866 में देवबंद की सरजमीन पर एक मदरसे की बुनियाद रखी और फिर उन्होंने इस मदरसे के जाल को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाने की कोशिश की। गुलावटी में मदरसे की बुनियाद रखी, मुरादाबाद में मदरसे की बुनियाद रखी, अमरोहा में मदरसे की बुनियाद रखी। ये वो मदारिस हैं जिन मदरसे को मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही तैयार किया, खुद ही उनकी बुनियाद रखी और फिर ये मदरसे के जाल फैले और यहाँ से उलमा की टीम तैयार हुई। 1857 की इस जंग के आजादी के बाद फिर उसके बाद जब लोगों को बेदार करना शुरू किया, इन उलमा ने मेहनतें की। मौलाना शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आजादी मुजाहिदीन आजादी ने कुर्बानियां दी है। उसके बाद ये जंग का सिलसिला ये तवील चलता रहा है और फिर 1947 में कहीं जाकर हमारा ये मुल्क आजाद हुआ है। और इस मुल्क को जिसको सबसे बड़ा, जिसके सर पर ताज सजाया जाता है, आपको उनकी तारीख में बताओ, 1919 में, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, वो 1919 में इस मुल्क की आजादी में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया है। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बताया और उनको आमादा किया तो फिर 1919 में आकर महात्मा गांधी ने जंग आजादी में और तहरीक आजादी में अपना हिस्सा बटाया है और फिर उन्होंने तहरीकें शुरू की है। 1920 में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हफ्जुर रहमान सिवहारी और दीगर बिरादरान वतन के रहनुमाओं ने मिलकर दिल्ली में इजलास किया है और फिर 1940 और 42 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई है। उस तहरीक के नतीजे में और फिर वही तहरीक कारगर हुई है और वो तहरीक जाकर 1947 में हमारा ये मुल्क आजाद हुआ है। ये मुल्क की तारीख है 1757 से लेकर। लोग आज ये तारीख पेश की जाती है स्कूलों में और प्रोग्रामों में और कॉलेजों में, जो तारीख पढ़ाते हैं, जो तारीख बताई जाती है, वो सिर्फ 1857 से लेके 1947 तक की तारीख बताई जाती है। 1857 से पहले 1757 से लेकर 1857 तक की तारीख को फरामोश कर दिया गया, जिसमें सिर्फ मुसलमानों का किरदार रहा है, जिसमें मुसलमान उलमा की कुर्बानियां रही है, मुसलमान मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियां रही है, उन कुर्बानी को फरामोश कर दिया गया। 1947 में जब ये मुल्क आजाद हुआ, अब इस मुल्क को कानून की जरूरत थी,
इस मुल्क को दस्तूर की जरूरत थी, इस मुल्क को चलाने के लिए अपने एक उसूल चाहिए था। उस उसूल को बनाने के लिए फिर 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाहि अलैह भी शरीक थे। आज हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि वो सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। हाँ, ये ठीक है, उस कमेटी का सदर बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन उस कमेटी में हमारे भी अफराद थे, हमारे अफराद रोल अदा करने वाले हैं। मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाहि अलैह उस कमेटी में शामिल है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने की क़यादत में वो कानून तैयार हुआ है और फिर 1950 में जाकर 26 जनवरी की तारीख में उस कानून को इस मुल्क में नाफिज किया गया है। ये 26 जनवरी की तारीख है, जिस 26 जनवरी को आज यौम जश्न और मुल्क की तारीख में एक अहम तारीख माना जाता है और यौम तातील के तौर पर इस 26 जनवरी के दिन को याद किया जाता है। हमें जरूरत है कि हम अपने उलमा की कुर्बानियों को पढ़ें, हम मुस्लिम कायदीन की कुर्बानियों को पढ़ें। हम याद रखें कि हमारे उलमा ने और मुसलमानों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की है। हमारे इन बिरादरान वतन ने हमारी इन कुर्बानियों को फरामोश किया है, लेकिन हमें फरामोश नहीं करना है, हमें नहीं भूलना है। हम इनकी बातों पर आकर हमें हिचकिचाना नहीं है, इनकी बातों में आकर हमें मुतासर नहीं होना है, बल्कि हमें अपनी कुर्बानी और अपनी तारीख को याद रखना है। ये मुल्क हमारा इतनी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ है, लेकिन आज इस मुल्क में जिसकी सबसे ज्यादा कुर्बानी है उसी तबके को टारगेट किया जाता है, उसी तबके की मस्जिदों पर हमला किया जाता है, उसी तबके के अफराद को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, उसी तबके के अफराद को ना जाने तरह तरह के बहाने के नाम पर खत्म किया जाता है। और जमहूरियत का जो जमहूरी निजाम कायम हुआ है, जमहूरियत का मतलब ही यही होता है कि जिस मुल्क के जो अफराद है, हर मुल्क को आजादी मिले उनके राय की, हर अफराद को आजादी मिले उनके मजहब पर चलने की, हर शख्स को आजादी मिले उनके मिजाज और उनके सोच पर चलने की। लेकिन आज एक खास कानून पर, एक धर्म के नाम पर इस मुल्क में कानून को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। अगर हमारे त्योहार आए और मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ ले तो इस पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन अगर नवरात्रि आए गोश्त पर पाबंदी लगा दी जाए, इस पर कोई मसला नहीं है। दीगर चीजों पर पाबंदी लगा दी जाए, रोडों पर या अपने त्योहारों के नाम पर रोडों को ब्लॉक करते हैं, गलियों को ब्लॉक करते हैं, इन पर कोई मसला नहीं। अगर मुसलमान साल में 2 दिन ईद और बकरीद के दिन रोड पर नमाज पढ़ लेंगे और गलियों को अगर ब्लॉक करेंगे तो उन्हें एतराज होने लगता है। ये जमहूरियत का कत्ल है। जो जमहूरी निजाम हमें हमारे अकाबिर ने दिया है, उस जमहूरियत का कत्ल किया जाता है। मुसलमानों, हमें अपनी तारीख को याद करना है और अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल से अपना ताल्लुक इस्तिवार करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिर में अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। ज़मीं के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, ज़मीं के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।